Okay. Hi. Now, how are you? So, Jai Hind, Jai Bharat. So, today we are going to start limits. So, again, we are going to do the same pattern. 25 questions in total, and 20 question is going to be MCQ multiple choice, and 5 question is going to be integer based questions. ओके सो इसके बारे में समझ लेते हैं ना। JEE मेंस में तो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लिमिट से डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन बेटा लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पूछ देता है, तो लिमिट का यूज़ वहाँ पे भी होता है, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। और कभी कभी ऐसा देखेंगे कि विल आल्सो स्टडी, जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो हम लोग वहाँ से फिर से लिमिट का यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे भी आते हैं जो लिमिट के जैसे दिखते हैं, बट वो इंटीग्रेशन के होते हैं, तो चीज़ें ध्यान में रखने वाली है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, चलो समझ लेते हैं, ठीक है। दिस इज सेइंग कि we have a function which is defined from real number to real numbers and real number to real number, and there is some information. What is that? That it is saying no, okay, it is a positive increasing function. It is a positive increasing function. So what does that positive increasing function means? If we try to draw the graph, of a increasing function, how does it is going to be? If it is increasing function, suppose at here it starts, so if it is increasing function, so it will always increase, yes or no? It will always increase, yes or no? So if it always increase, for example extending to infinite, it doesn't matter no. Suppose x is going to be somewhere here, यहाँ पे कहीं पे मिल गया x, so corresponding will get fx, yes or no? Okay. And 2x, no? If you talk about the 2x is going to be after the x, yes or no? So if it is after x, then I would mark somewhere here, no? चलो, तो corresponding value is going to be f of 2x, and similarly 3x is going to be after the 2x, so f 3x is going to be greater than f of 2x, yes or no? चलो, तो this information is given, and this has been asked. So from here can we say one thing कि fx is less than f of 2x and which is less than f of 3x, yes or no? So first I can write down from this graph what I can write down, f of x, it is going to be less than f of 2x, and which is going to be less than f of 3x, yes or no? No, f, yes or no? Okay, next. As I am observing in all, in denominator we have fx, so how can we get in denominator fx? So it is very simple, we will divide with the fx. So if I divide with the fx, so this is going to be fx of fx, yes or no? And sign of inequality will remain same because they are increasing function with positive increasing function. Positive increasing function means f of x, f of 2x, f of 3, everything is going to be positive, so it should less than f of 2x divided by f of x, which is less than f of 3x divided by f of x. Okay, so as far we are saying in the question, it has been asked limit extending infinite. So if I take limit extending to infinite, so I can see that this will simplify to 1, its limiting value is going to be 1, and in this case it is going to be limit extending to infinite f of 2x divided by fx, and again this is going to be limit extending to infinite f of 3x divided by fx, which is given, now that value is given 1. So sir, no, something स्ट्रेंज हैपन्स ना। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी 1 आ गया। इट मीन्स ना, एक कहाँ पे सीखा था सर, ये हम लोगों ने सीखा था सैंडविच थियरम में। एक कहाँ पे सीखा था, सैंडविच थियरम में। अगर बोल रहा है कि लेफ्ट साइड की लिमिट 1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इसका मतलब एक कब हो सकता है सर, इट इज़ ओनली पॉसिबल ना, कब हो सकता है कि ए भी क्या हो जाए, एफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ऑफ 2x डिवाइड
बाय एफ एक्स इट शुड आल्सो बी 1, ठीक है, ये 1 होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नो नॉट पॉसिबल. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 1. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स 1. इज दिस क्लियर और नॉट? तो सैंडविच थ्योरम ध्यान में रखना, सैंडविच सुन के खाने ना पेट में ऐसा कुछ गुदगुदी ना हो ना, दिमाग में होना चाहिए कि हाँ सर सैंडविच थ्योरम बोल रहे हैं तो हाँ मतलब यूज़ करना है, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई. ओके, सो ये क्या बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट ना, सच दैट लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट and this information is given. So after seeing this question I feel like ki it is saying ki limit of this complete function at x tending to infinite is a finite quantity. So before trying to find out limit, first we'll try to check at x equals to 5 at which kind of limit is it is, which form ना, कौन सा फॉर्म है, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट. लिमिट के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला टास्क यही होता है, अगर लिमिट गिवन है तो फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट इट्स फॉर्म. तो इसके फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 पुट किया, ट्राई किया. तो एक क्या हो जाएगा एफ ऑफ 5 स्क्वायर -9, और आई थिंक नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 0 ना, और डिनोमिनेटर में 0 हो गया ना. तो और ए लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, तो बेटा ये कब पॉसिबल है ना, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द न्यूमरेटर बिकम 0, व्हेन द न्यूमरेटर बिकम्स 0. सर ऐसा क्यों, न्यूमरेटर अगर सर 0 नहीं हुआ तो, अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो हो गया तो नॉन जीरो अपॉन 0 इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, नॉन जीरो अपॉन 0 इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट ना, वेरी लार्ज नंबर. बट यहाँ पे क्या दिया है, रिजल्ट 0 दिया है. तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन limit x tending to 5 f of x of whole square -9 becomes 0. तो यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे दिख रहा है ना कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 ना एफ एक्स होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 9. इट मीन्स कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 इज गोइंग टू बी एफ एक्स इज गोइंग टू बी +-3 +-3. चलो अब ये क्या बोल रहा है कि बट यहाँ पे दिख रहा है कि जो रेंज है, रेंज इज पॉजिटिव. इफ रेंज इज पॉजिटिव सो हाँ इसका आंसर क्या आएगा बेटा ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा. सो इट मीन्स कि वी कैन टेक नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 3. सो लेट मी सी विच ऑप्शन इट इज़ ना, ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में ऐसा भी कर देते हैं कि ना दे विल पुट 1 आंसर -3, ठीक है. तो कभी कभी बच्चे ऐसे गड़बड़ कर जाते हैं ना, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन ना, पूरे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट किया करो, इंफॉर्मेशन को रीड करो एंड अकॉर्डिंग टू दैट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन. इज दिस क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ना. चलो ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन ना. तो सर देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके बारे में. तो फर्स्ट सेम प्रोसेस, फर्स्ट विल ट्राई टू डिटरमाइन विच फॉर्म इट इज़. सो सर फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल है, लिमिट की वैल्यू पुट कर दे. इफ x इक्वल्स टू 0 आई पुट, सो इट इज़ गोइंग टू बी cos 0, 1 माइनस cos 0 इज़ 1, 1 - 0. तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी 0/0. और अगर 0/0 हो गया फिर तो यार बहुत ही सिंपल है. देखो लिमिटिंग प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है सर, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है ना, इसको और इसको. तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे सर ना, बहुत ही सिंपल है. लिमिट x टेंडिंग टू 0 ना, और यहाँ पे क्या आ गया 1 - cos 2x. तो बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ना, ये 0 और ऊपर क्या हो जाए 1 - cos x, और नीचे क्या आना चाहिए, इसी का स्क्वायर आना चाहिए, x स्क्वायर. बट इन दिस केस आई एम सेइंग कि इट इज़ twice of x, तो आई शुड राइट डाउन इन द डिनोमिनेटर 4 ना 2x होल स्क्वायर या 4x स्क्वायर, यस और नो, टू मेक इट इट्स लिमिटिंग वैल्यू 1. इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे कि स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट किया. तो सर अगर आपने 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सो इट मीन्स कि बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
4x² से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 4x² से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो, और ऊपर तो सेम रहेगा ना, 3 + cos x, वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर है, एक x ना दे विल कैंसिल, एंड फिर से सर ये भी सेम फॉर्म बन गया, tan लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x/x क्या होता है 1, सो दिस कंप्लीट विल गिव अस 1, एंड इसका क्या आता था आंसर 1/2, सो आंसर इज गोइंग टू बी, इट विल गिव 1/2 एंड दिस इज 1, सो आई कैन राइट डाउन एज इट इज, एंड इन द न्यूमरेटर it is going to be 3 plus cos 0 is 1, so I think answer is going to be 2, answer is going to be 2, so which option is 2? Now option number first, option number first। तो ये ध्यान में रहे कि स्टैंडर्ड लिमिट याद होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट याद होनी चाहिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो एक बार, देन आई विल सी। Oh, okay, let's see. It is saying let p equals to limit extending to 0 plus 1 plus tan square root x, ना। First again we will try to determine form। तो डिटरमाइन फॉर्म तो x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 होते ही क्या हो जाएगा 1, और आई थिंक कि 1/∞ फॉर्म बन रहा है ना। तुम लोगों को कुछ अलग लगे तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, विल ट्राई टू सी। चलो तो देख लेते हैं, इफ़ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस तो बहुत ही सिंपल है ना, 1/∞ फॉर्म को हम लोग कैसे करते थे, 1/∞, एक मिनट, चलो देखते हैं ना। तो इट इज़ क्लियर आई थिंक कि इट इज़ 1/∞ फॉर्म ना, कोई प्रसाद देखे आ गया था, चलो कोई बात नहीं, इट इज़ 1/∞ फॉर्म। सो इफ इट इज़ 1/∞, टू सॉल्व इन लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ 1/∞, व्हाट डिड यू डू ना, हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीका, सिंपल फार्मूला यूज़ करते थे। क्या करते थे हम लोग, लिख देंगे है ना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 + fx, या फिर fx⁻gx ना, ऐसे ऐसे सोच लिया करो। तो इसका लिमिटिंग केस क्या होता है, e ना m क्या है, m बेटा वही है m जो तुम समझ रहे हो, m इज गोइंग टू बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और gx इन दिस केस इज 1/2x इंटू fx, और fx इस केस में क्या है, बहुत ही सिंपल, दैट इज tan स्क्वायर रूट x। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि फिर से सर लिमिट 0 प्लस हो गया 0 और ये tan स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या चाहिए नीचे सर, जो भी यहाँ पे है ना 0 पे ए भी 0 टेंड कर रहा है, तो इसको सर क्या चाहिए यहाँ पे रूट x का स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ tan स्क्वायर x। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको राइट डाउन कर लेंगे, और आई थिंक कि आंसर कुछ बच्चों को दिख भी रहा होगा ना, 1/2 आई कैन टेक इट आउट, एंड दिस इज गोइंग टू बी tan स्क्वायर रूट x, और नीचे रूट x का स्क्वायर, एंड रूट एक्स स्क्वायर इज बेसिकली x, तो x को हम लोगों ने क्या लिख दिया, रूट x स्क्वायर। तो आई थिंक इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 1/2। इट मीन्स कि कंप्लीट आंसर इज गोइंग टू बी e⁻1/2। सो e⁻1/2, लेट्स चेक विच ऑप्शन इट इज। तो e⁻1/2 ना, अच्छा नहीं है, कोई नहीं, अच्छा इट इज b ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ p। सो इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड log p, so if I take log on the both side, log p, तो I think again it is going to be log of base e⁻1/2, तो answer is going to be 1/2, answer is going to be 1/2। so which option is 1/2? option number second, so option number second is going to be the correct answer। okay, let's move to the other question and you need to try to solve this question। okay, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ना हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी दिख रहा है लिमिट का, बट इट इज़ एक्चुअली द क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। वहाँ पे हम लोग जो फंडामेंटल प्रिंसिपल से देखेंगे कि इंटीग्रेशन ना एक्चुअली लिमिट से ही आता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे इस सॉल्व को, ठीक है। इसको अभी रहने दो, बाद में करेंगे, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस। हो ला 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 ला, शरके रे रे
Okay, now I think you have read the question. Okay, let's try to solve. So first I should observe कि x is going to be tending from pi by 2. So in these kind of questions generally we are very what you say familiar with the zero limit x tending to zero. तो ऐसे क्वेश्चन में मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों ना, आई रिकमेंड कि यू शुड पुट x इक्वल्स टू ना x इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस h. ना इफ x टेंडिंग टू पाई बाई 2 इट मीन्स कि h इज गोइंग टू बी टेंडिंग फ्रॉम जीरो. h कहाँ पे टेंड करेगा? जीरो. तो अब देखो कन्वर्ट हो जाएगा. कन्वर्ट क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एंड इन द न्यूमरेटर जस्ट थिंक अबाउट cot it is going to be pi by 2 plus h. So cot 90 degree plus theta is going to be tan of theta, and just think about it, it is positive or negative? It is negative. Why? Because this is going to be in the second quadrant. So I would write down this as a minus of tan h and minus, and cot again 90 plus theta is going to be sin theta, and cos in the second quadrant is negative, so I would write down minus of minus sin h. Okay sir, very easy. Okay, and again pi minus twice of x is going to be, I think I would multiply by 2, so it is going to pi and plus 2h, so pi minus 2h I think it is going to be minus 2h whole cube, minus 2h whole cube. Okay sir, now what? So now what we will see. So it is going to be limit h tending to 0 and this is minus minus plus, so I should write down this as a sin h minus of tan h. Yes or no? Okay sir, and in the denominator it is going to be minus of 8h cube. सर अब क्या करें ना? वैसे तो मैंने बोला था इसको स्टैंडर्ड चीज़ें हैं याद रखो ना, अदरवाइज हम लोग देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं. तो आई थिंक कि एक काम ऐसे कर सकते हो कि साइन एक्स को कॉमन ले लो ना, और साइन एक्स को कॉमन लेते हैं यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा ना, जस्ट थिंक अबाउट इफ आई टेक साइन एक्स कॉमन, इफ आई टेक साइन एच कॉमन, सो इट इज़ गोइंग टू बी यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, और tan एच से साइन एक्स कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एच, एंड 1 अपॉन कॉस एच को ऐसे ही रखने दो ना, इट इज़ गोइंग टू बी माइनस ऑफ 8h क्यूब ना. फिर क्या सर ना, दिस साइन h नीड 1h, तो एक h को दे देते हैं. ओके, उसके बाद आई थिंक वेरी वेरी सिंपल. सो इट इज़ गोइंग टू बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1/8 बाहर कर लो. ठीक है, चलो तो a इवेलुएट हो गया ना, ये हट गया. ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस h माइनस 1 कॉस h माइनस 1 डिवाइड बाय एच स्क्वायर ना. तो और ऐसा देखा है अभी ना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1/2, बट सर दिस इज कॉस एच माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इट मीन इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 1/2. सो इफ इट इज माइनस 1/2 तो आई थिंक की आंसर इज सिंपल. It is going to minus 1/8 into minus 1/2. So answer is going to be 1/16. Answer is going to be 1/16. Or if you can think of something like this, then you should use 1 minus 2 sin square. It will cancel and we'll get h/2. Okay. So which option is 1/16? I think option number first. Option number first is 16. It means option number 1 is the correct answer. Let's move to the question number 7. चलो चलो चले वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, शाम ने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, तुम ना डरो किसी से. दीज काइंड ऑफ पहले बहुत गाते थे ना, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स पोएम्स अच्छा लगता है. चलो देखते हैं. सो इट इज सेइंग कि क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ईच t बिलोंग्स टू रियल नंबर्स लेट be a greatest integer less than or equals to, we know the definition. Okay, so in these kind of questions of greatest integer, in case of limit, you should try to write down those in terms of greatest integer function plus fractional part function.
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. तो सर होता क्या है, कैसे लिखते हैं? तो इफ़ वी हैव एनी नंबर x, सो आई नो दिस नंबर x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. इट मीन्स कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x minus its fractional part. Yes or no? No. Okay, so we'll use the same logic. So if I write down by using the same logic, so it is going to be limit x tending to 0 plus x. No. तो फर्स्ट आई एम राइटिंग डाउन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, सबको x लिख दिया. तो एक साथ लिखते हैं. तो एक साथ कैसे हो जाएगा? तो दिस इज गोइंग टू 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x एंड सो ऑन अप टू 15/x. यस और नो ना? तो सर ए राइट डाउन कर दिया. इसका मतलब और भी कुछ करेंगे? हाँ, श्योर करेंगे. एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x. सब्ट्रैक्शन करना है. एंड माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ x. एंड ऐसे ही चलता जाएगा. कहाँ से? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x ना. तो आई थिंक कि इट इज़ क्लियर ना. तो 15/x हो गया. तो देखो यार, यहाँ से दिख रहा है कि इफ आई मल्टीप्लाई बाय x ना, तो ये तो पूरा इवेलुएट हो जाएगा ना. तो इट इज़ गोइंग टू बी 1 प्लस, मैं इसको बाहर लिखता हूँ, 2 प्लस 3 प्लस ना डॉट 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 अप टू 15. बट यहाँ के बारे में सोचो ना कि दे आर द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा? दैट इज इन बिटवीन 0 to 1. इफ दीज नंबर्स आर इन बिटवीन 0 to 1 एंड वी आर एडिंग 15 नंबर्स ना, तो मैक्सिमम कितना जाएगा? मैक्सिमम बहुत हो सकता है सर 14.99 ना, 15 ही मान लिया. चलो हमने क्या मान लिया? 15. बट याद रखना दैट 15 व्हेन इट विल मल्टीप्लाई विद दिस x, when limit x tending to 0, तो क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू वेरी क्लोज टू 0. इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू 0 एंड वेरी क्लोज टू 0 into 15, वेरी क्लोज टू 0. इट मीन इट इज गोइंग टू बी 0. तो आई वुड राइट डाउन -0. ओके, सो आई थिंक दिस इज सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर इज गोइंग टू बी 15n into n plus 1, that is 16 and divide by 2. तो आई थिंक इट इज गोइंग टू 15 and 16 divide by 2 is 8 and 15 8 the answer is 120. 15 8 120. So option number 3 is the correct answer. Let's try to solve the question number 8 for each. So I think you can also use the same logic now, but in this question something is given. So it is saying ki we need to find out limit x tending to 0 minus x tending to 0 minus, sir. So it is approaching 0 with the negative side. It is approaching 0 with the negative side. It means ki sir, it is value of x is going to minus 0.01, very close to 0, but it is going to on the negative side. So just think about it. Yeah. So if x is a negative, so I would write down this as it is. So first let's try to think about the limit. It is going to be in the denominator 0 and whatever 0. So if it is 0, so just think about and I would to write down limit x tending to 0 minus. So numerator as it is x. But here just think about it. It is a negative number very close to 0. So its greatest integer function is going to be -1. Greatest integer of minus 0.1 is going to be -1. Greatest integer याद है ना? ठीक है. तो in this case it is going to be -1. Okay sir. And mod of x, तो mod of x what I think it is going to be for negative numbers. नेगेटिव नंबर्स में मॉड कैसे निकलता था सर? नेगेटिव नंबर्स में वी आल्सो गिव 1 माइनस साइन. सो नेगेटिव ऑफ mod of x, if x is negative is going to minus of x. So in this case it is going to be minus of x. चलो ए हो गया ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हट गया. और यहाँ पे क्या हो गया बेटा ना? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सर ए हो गया सिंपल साइन ऑफ -1. अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया? अगेन माइनस ऑफ एक्स ना, क्योंकि मॉड निकल रहा. तो यहाँ से देखो ए कैंसिल हो जाएगा ना. इफ दिस बिकम्स कैंसिल तो आई थिंक कि वेरी सिंपल -1 एंड इट इज़ 0. तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी -1 इंटू साइन -1. साइन -1 इज माइनस साइन 1. तो आंसर अच्छा एक माइनस यहाँ पे भी है ना, तो एक माइनस यहाँ पे भी है, तो डिवाइड बाय -1. तो आई थिंक आंसर इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ साइन 1. आंसर इज माइनस ऑफ साइन 1. So which option is the correct option? Minus sin 1 is the again first answer. So first answer is going to be the correct answer. Okay, so let's move to the
क्वेश्चन नंबर 9. You need to try to solve this question number 9. Okay, try करो ना. चलो, it is one of the good questions you can try. La 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 la. First, again, while trying to evaluate limits, first try to understand about the form. So if fx tending to 0, so it is going to f2 minus 2, so I think it is going to be denominator 1, so it doesn't matter. And so I think it is 1 raised to infinite. क्या है 1 raised to infinite. So again sir 1 raised to infinite में अभी देखा ना, तो इसमें हम लोग m इवेल्युएट करते हैं. ठीक है, m क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू e रेस्ट टू उसको कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 gx, दैट इज 1 by x into whatever here minus 1, so it is going to be 1 plus f of 3x 3 plus x minus f3 divide by 1 plus f of 2 minus x माइनस f2 एंड होल माइनस 1. ओके सर, तो अब फिर से सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, क्योंकि ये तो 0/0 आ रहा था ना 1, तो आई थिंक इट इज़ 1 minus 1 ना, तो 0 बन जाएगा. चलो, तो हाउ कैन वी सिंप्लीफाई, सिंपल है, एलसीएम ले लेंगे. सो इफ आई टेक एलसीएम, सो इट इज़ गोइंग टू बी लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 by x, एंड इन ब्रैकेट जस्ट थिंक अबाउट इट इज गोइंग टू 1 plus f of 3 plus x minus f of 3 and minus 1 minus of f of 2 minus x minus plus f of 2. yes or no? yes sir. and divided by 1 plus f of 2 minus x माइनस ऑफ f2. तो ये जो x है ना बेटा, इसको नीचे मल्टीप्लाई करके देखो, तो अब देखो ऊपर आई थिंक कि 1 1 कैंसिल, 1 1 cancel, and this is, if this multiplied by this, so it becomes 0/0 form ना, this becomes 0/0 form. if this becomes 0/0 form, then again we can use L'Hopital rule. L'Hopital rule सर कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो सर. इफ आई डिफ्रेंशिएट दिस, इट इज गोइंग टू बी f dash 3 plus x, एंड फिर 3 plus x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, तो आई डोंट नीड टू राइट डाउन. सर डिफ्रेंशिएशन ऑफ f3, तो जस्ट थिंक अबाउट द फंक्शन f3. सो f3 इज अ कांस्टेंट नंबर, value of function at x equals to 3, so it is going to be constant, so its differentiation is going to be 0, and again this is going to be minus of -2. so I think this is going to be f dash 2 minus x, and when I again differentiate 2 minus x, we get 1 minus sign, and this minus sign will make it plus sign, and again this is going to be differentiation 0. again in denominator, just think about it. so in the denominator, so it is going to be first function, I would assume x, and differentiation of the second function, because they are in the multiplication. so second function is this. so if I differentiate this, so again it's a differentiation 0, this differentiation 0, so it is going to f of 2 minus x, and differentiation of 2 minus x is going to be 1 minus. okay, next plus second function, that is 1 plus f of 2 minus x minus f2 into differentiation of x. so differentiation of x is 1, so it is going to be as it is. now I think we should just put the value, because it isn't going to be an indeterminate form. we can determine this value because it is going to f dash 3 and plus f dash 2, तो इसकी वैल्यू 0 दी ना, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी इन द न्यूमरेटर 0, and its value is 0 into f minus 2, so this portion is going to be 0 and this portion is going to be 0, divide by 1, so I think it is 0/1, so 0/1 is not an indeterminate form, so its value is 0, so answer is going to be 0 na? Answer is going to be 0. so is there any option 0? yes sir, no sir, no. so we have find out the value of m, so if value of m becomes 0, then the answer of this limit is going to be e raised to m, तो एक क्या हो जाएगा e raised to 0, and value of e raised to 0 is 1. value of e raised to 0 is 1, it means कि answer is going to be e raised to 0 is 1 ना. so option number second option is the correct answer. so let's move to the next question.
क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो ना। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ना सर, आपको तो इजी लगता ही होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन वी फील लाइक कि ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, दिस क्वेश्चन वी वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व। तो इन दैट केस जस्ट से आई कैन डू इट, just say I can do it, and I believe definitely you can do it. Okay, so let's move to the question number 10. So it is saying ki fx is given. So it is, I think, ki continuity problem, but I think we can say find out. So in the again continuity, how do we check continuity? If left hand limit, right hand limit and value of the function they become same, then we will say ki function is continuous at that point. So continuity, I think they are checking in every question at 4 no? ये सब में कहाँ पे चेक कर रहे हैं? 4 पे। तो हम लोग भी चेक करते हैं 4 पे। So first let's find out the value of function at f4. So if I put 4, so it is going to be greatest integer of 4, so that is going to be 4 minus greatest integer of 4 by 4. तो I think greatest integer of 4 is 1, 4, and minus 4 by 4 is 1, and greatest integer of exactly 1 is going to be 1. So answer is going to be 3. Okay sir. अगेन हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? लिमिट एफ एक्स एंड एक्स टेंडिंग टू 4 माइनस, एक्स टेंडिंग टू 4 माइनस। सो इफ इट इज 4 माइनस एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स ना, फिर से मैं वही लिख देता हूँ। तो मैं डायरेक्टली जस्ट थिंक अबाउट इट ना, आई थिंक वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली। कैसे सर? तो जस्ट थिंक अबाउट इट इज द greatest integer of x and in this case x is 4 minus। तो सर 4 माइनस का मतलब क्या होगा? 4 से जरा सा छोटा होगा, 4 से जरा सा छोटा। सो इफ इट इज लिटिल बिट स्मॉलर देन 4 देन इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज गोइंग टू बी 3। 4 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? दैट इज 3। सो आई कैन राइट डाउन दिस 3 और फिर माइनस। अब यहाँ पे सोच कि न्यूमरेटर इज x एंड x इज 4 माइनस, इट मीन्स कि न्यूमरेटर इज लेस देन a little bit less than 4, a little bit less than 4। अब little bit less than 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो would we get greater than 1? No sir, because numerator becomes less than the denominator. It means we get the value nearly 1 but not 1। 1 से छोटा होगा तो greatest integer of a number which is less than 1 that is going to be 0। तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया 3। तो अगेन विल ट्राई टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट RHL रहल दैट इज गोइंग टू बी लिमिट fx वेयर x इज गोइंग टू बी टेंडिंग टू 4 प्लस। तो 4 प्लस में फिर से सेम लॉजिक, विल यूज द सेम लॉजिक। जस्ट थिंक अबाउट इट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4 स्लाइटली। ऐसा नहीं है कि फिर 4 से बहुत ही ज़्यादा है, हाँ 25 हो गया ना। इट इज़ नॉट लाइक समथिंग लाइक दैट। 4 से इट इज़ ग्रेटर देन 4 बट इट इज़ वेरी स्मॉल ग्रेटेस्ट ना, 4.001। ओके, सो इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इन 24 अगेन माइनस। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 4 लिटिल बिट एंड इफ आई डिवाइड इट बाई 4 तो रिजल्ट विल गेट ग्रेटर देन 1। रिजल्ट में क्या मिलेगा? ग्रेटर देन ना 4.001 है तो एटलीस्ट 1 टाइम तो डिवीजन जाएगा ना, एंड प्लस समथिंग विल गेट। सो इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज गोइंग टू बी 1। सो इट मीन अगेन वी गेट द आंसर 3। सो इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे आर इक्वल एंड आल्सो दे आर फाइनाइट। ऐसा नहीं है सर कोई इनफाइनाइट मिल रहा है, ठीक है, तो फाइनाइट मिल रहा है। इट मीन्स कि विल से कि एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 4। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहा है और फंक्शन डजेंट एग्जिस्ट, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। लिमिट एग्जिस्ट बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज आल्सो रॉन्ग। no, not equal, they are equal। so option number 2 is going to be the correct answer। चलो let's try to solve the question number 11 and I think let's try to solve। let's see। तो आई थिंक इट इज सेइंग कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1।
तो समथिंग लाइक दिस. सो आई नो कि इफ एक्सटेंडिंग टू 1, तो दिस इज अगेन 0/0 फॉर्म and this is again 0/0 form. 0/0 form. So this we can evaluate. I think if in the denominator we have degree only 1, then we should use L'Hopital rule. We should use L'Hopital rule, and by L'Hopital I think it is very simple. This is going to be limit x tending to 1, and if I differentiate x raised to 4, that is going to be 4x cube and 0 divided by 1. So at x tending to 1, I think this is going to be 4. This is going to be 4. Again this side 0/0 form. So I think in the denominator we have degree 2. We could use L'Hopital, but we need to use L'Hopital 2 times ना. उसको क्या करना पड़ेगा, 2 बार यूज करना पड़ेगा. वैसे एक बार में ही हो जाएगा, एक बार में भी हो जाएगा, ठीक है. या तो फैक्टराइज कर सकते थे. तो आई थिंक कि ए भी 0 हो रहा है, तो वी विल यूज L'Hopital. सो इट इज गोइंग टू बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू के. तो दिस इज गोइंग टू बी 3x² divide by नीचे डिनोमिनेटर में just think about it. In the denominator it is going to be twice x. तो I think एक x कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर दिस साइड इज गोइंग टू बी 3k/2. और if this is equal, so it should equals. तो from here value of k is going to be I think 8/3. Value of k becomes 8/3. So option number 3 becomes the correct answer. Option number 3 is the correct answer. Let's move to the question number 11. Try to read the question number 11 and then try to solve it. Okay, easy peasy. Okay, so something like this question, one question we have tried to done na in the earlier. Okay, what does it saying? It is saying ki limiting value is finite. So first we'll try to check at x equals to 1 what is happening. So if I put x equals to 1, then I know okay, in the denominator it is going to be 0 and in the numerator it is going to be b. Or result is finite value. So बेटा पॉसिबल कब होगा ना, it is going to be only possible when कि सर ये क्या हो जाए, लिमिटिंग वैल्यू हो जाए, या तो 0/0 फॉर्म बन जाए. बिकॉज इफ इट बिकम 0/0 फॉर्म ना, तब तो कोई चांस है वी कैन फाइंड आउट द लिमिट, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है. सो दैट्स वाई इट इज गोइंग टू बी ओनली पॉसिबल व्हेन द न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 1. सो न्यूमरेटर एट x इक्वल्स टू 1 इज गोइंग टू बी 1 माइनस a प्लस b एंड इट शुड इक्वल्स टू 0, तभी पॉसिबल होगा, ठीक है. चलो, तो एक तो इक्वेशन बन गया. और क्या सर, तो जस्ट थिंक अबाउट इट. इफ दिस बिकम्स 0/0 फॉर्म ना, तो हम लोग फिर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, वी कैन यूज L'Hopital. सो इफ आई यूज L'Hopital, सो डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी लिमिट x टेंडिंग टू 1 and in the numerator it is going to differentiation of x², that is twice of x minus a x1, and the differentiation of b is going to constant number, so it is going to be 0 divided by differentiation of x is going to be 1. So its value is given 5. No? So I know if I put x equals to 1, it isn't going to be any indeterminate form, so we need to put the limit. If I put limit, so it is going to be 2 minus a equals to 5. So from here we get the value of a, that is going to be minus 5 plus 2. So minus 5 plus 2 is going to be minus 3. So value of a becomes minus 3. So if a becomes minus 3, so I think it is going to be 1, and minus 3 plus 3. So 1 plus 3 is going to be 4. So it means ki value of b is going to be minus 4. Value of b becomes minus 4. So in the question it has been asked a plus b. So it means ki a plus b is going to be minus 3 minus plus 4. So it means answer is going to be minus 7. It means answer is going to be minus 7. Let's move to the question number 13. Okay, try just think about it. Try to read the question and then we will tell you how to handle this question. तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आई थिंक कि उनको समझ में आ जाता है कि ऐसे क्वेश्चन करने पे कैसे आता है, ठीक है. तो फील आ जाता है, ठीक है. और फील सर कब आएगा ना, फील इज ओनली हैपन व्हेन, जब तुम लोग बेटा प्रैक्टिस करोगे,
ठीक है, जो कोई भी टीचर बोल रहे उसको करोगे तो ही होगा. देयर इज़ नो सक्सेस टू शॉर्टकट. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. ओके, सर को कोट नहीं आता ना. हाँ, कोट नहीं आता. चल देख ले. So let fx equals to 5 minus mod of x minus 2 and this. It is saying it is fx. It attains maximum value at alpha. x equals to alpha. तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करेगा? तो सर मैक्सिमम वैल्यू मुझे लग रहा है बहुत ही सिंपल है. ए मैक्सिमम कब होगा? fx इज गिवन एज 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2. और सर हमको पता है ना, मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, एंड वी वांट इट मैक्सिमाइज, एंड बिफोर नॉन नेगेटिव नाउ पुट नेगेटिव. इट मीन्स कि इट इज गोइंग टू बी नॉन पॉजिटिव. और ये अगर नॉन पॉजिटिव हो गया ना, एंड वी नीड टू मैक्सिमाइज इट, तो सर मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम तभी होगा व्हेन दिस इज गोइंग टू बी 0. सो इट मीन्स कि मैक्सिमम इज गोइंग टू एट x इक्वल्स टू 2. एंड ये क्या बोल रहा है? एक कब है? व्हेन अल्फा एट अल्फा. इट मीन्स कि यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? वैल्यू ऑफ अल्फा इज गोइंग टू बी 2. Similarly, we'll think about gx. So gx is given as mod of x plus 1, and it is saying कि it is a minimum, and mod is again going to be non-negative, so its minimum value is going to be 0. Its minimum value is going to be 0. So it is going to be 0 when x is going to be minus 1. When x is going to be minus 1, it means कि that beta is going to be minus 1. अब देखो, अब तो आई थिंक ये हो गया ना. लिमिट x टेंडिंग टू माइनस अल्फा बीटा. सो अल्फा बीटा इज गोइंग टू बी माइनस 2, और ऊपर से माइनस लगा दिया तो प्लस 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले फॉर्म देख लो. तो मुझे लग रहा है कि a बन जाएगा ना 4 माइनस 12 एन प्लस, नीचे 0 हो रहा है, ऊपर ये तो 1 आ गया, एंड 4 माइनस 10 एन प्लस 6, ऊपर भी 0 बन रहा है, तो 0 बाई 0 फॉर्म. तो आई थिंक वी शुड फैक्टराइज ना. तो फैक्टराइज x माइनस 1 इज ऑलरेडी फैक्टर्स. तो जस्ट थिंक अबाउट द न्यूमरेटर. आई थिंक दिस क्वाड्रेटिक वी हैव फेस्ड अ लॉट. क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th ना, सब में देखा है. एक्स स्क्वायर, जस्ट थिंक अबाउट 2 numbers whose product gives us plus 6 and addition gives us minus 5. So those two numbers are going to be minus 2 and plus 3, minus 2 and plus 3. So I can write down this its factor as x minus 3 into x minus 2. Yes or no? Similarly, in the denominator you need to also think about two numbers whose product gives plus 8 and addition gives minus 6. So sir, those two numbers are going to be minus 2 and minus 4. Those two numbers are going to be minus 2 and minus 4. It means कि in denominator it is going to be x minus 2 into x minus 4. x minus 2 into x minus 4. It means कि sir, in the denominator x minus 2 they would cancel each other. Not exactly 0, it is approaching 0, so we'll get some number, so we can cancel them because they are non-zero. Okay, so I think now we can simply put the value. If I put limiting value x equals to 2, so I think it is going to be 2 minus 1, that is 1, into 2 minus 3 is going to be minus 1, divide by 2 minus 4 is minus 2. The answer is going to be 1 by 2. Answer of this question becomes 1 by 2. So which option is 1 by 2? तो सर पहला ही आंसर है 1 by 2. It means कि first option is the correct answer. Should we move to the next question? Of course sir. No. We solved the question, then we should move to the next question, as we should move in the life ना. If you have solved some problem, try to solve next problem ना. लाइफ मिली किस लिए? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक है, चलो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. फर्स्ट ना, ट्राई टू डिटरमाइन फॉर्म. तो इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0, इट इज गोइंग टू tan pi by 4 plus 0, then tan pi by 4, and tan pi by 4 is going to be 1. So it is going to be 1, and 1 raised to 0 is infinite. So again I think the form is 1 raised to infinite, and in 1 raised to infinite form, if something like 1 raised to infinite happen, how would we solve? Now we will solve very simple. वैल्यू ऑफ m ना, m की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. तो m की वैल्यू क्या होगी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx gx into fx minus 1. So it is going to be tan pi by 4 plus x minus 1. चलो सर, अब क्या करें ना, अब बहुत ही सिंपल है.
क्या कर सकते हैं, 10π/4 को आई थिंक कि ना क्या कर लो यार, ओपन कर लो। सर ओपन कैसे करें ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, हाँ ये डिनोमिनेटर में आ गया x, ओके। सो 10π/4 प्लस x, 10π/4 इज 1, तो 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x ना, एंड माइनस 1। तो आई थिंक कि फिर सब्ट्रैक्ट, सो इट इज गोइंग टू बी लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x divided by 1 minus x into 1 minus 10x, 1 minus 10x. So I think कि minus 1 plus 1 they will cancel and we will get 2. So I would take 2 as outside limit x tending to 0, and it is going to be 10x divided by x. So this will transform into the standard limit. This will transform into the standard limit 10x upon x. So its value is 1. So complete answer is going to be 2 into 1 divided by 1 minus 10 0. So 10 0 is 0, so again in denominator we'll get 1. So complete answer is going to be 2. Answer of this question is 2. now तो हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट किए हैं सर ना, m की ना, यहाँ पे टिक मत कर देना बेटा ना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो कंप्लीट आंसर इज गोइंग टू बी e raised to m, and in this case m is 2, so answer is going to be e square. So always keep in mind in question of 1 raised to infinite and लास्ट आंसर क्या लिखना है, e raised to। तो ऑप्शन अगेन फर्स्ट दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट बिकम द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यशोदा का नंद लाला जग को जग सुन लाए रूप घा के सुनाए मोरगन के ना। तो आई थिंक कि कर लेते हैं, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं ना, लॉपिटल रूल, विल यूज लॉपिटल रूल। तो लॉपिटल यूज़ कर लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट सर, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो, x में करना है x में कर ले, ठीक है। तो चलो सर x के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, वैसे t के रिस्पेक्ट में करोगे क्योंकि यहाँ पे t है, ठीक है, t इज़ वेरी। तो लिमिट t टेंडिंग टू x, सो इन द डिनोमिनेटर आई थिंक विल गेट 1 ना, और न्यूमरेटर में सोच ना, एक्स स्क्वायर को तो कांस्टेंट हमने एज्यूम कर लिया कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस t f स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस f ऑफ t। चलो अब क्या करें, तो अब मुझे लिख रहा है कि इफ आई पुट f1 इज e, so f1 and fx equals to 1 ना, तो एक क्या दिया, ये समथिंग दिया ना। तो वी शुड आल्सो नो कि इफ लिमिट इज एग्जिस्टिंग एंड इट इज 0, तो इसका मतलब इसका 0 हो गया ना, दिस वैल्यू 0। सो 2 कैंसिल, सो विल गेट t f स्क्वायर x माइनस एक्स ना इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ टी। तो मुझे दिख रहा है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है ना, तो इफ आई पुट t इक्वल्स टू 1, इफ आई पुट t इक्वल्स टू 1, तो a1 हो गया और क्या हो गया एफ स्क्वायर x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एफ एक्स की दो वैल्यूज आ गई, दैट इज x एंड माइनस एक्स ना। सो आई नो कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1, सो इट मीन्स कि सर 1 कैसे आएगा ना, 1 कैसे आएगा। तो मुझे दिख रहा है यार 1 कैसे आ सकता है कि जब x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर दें 1, तो f1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बट ठीक है, t इज 0। अच्छा एक बार एक काम करना, ट्राई टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x
ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देख लेना एंड आई थिंक यू कैन डू इट ना। हम लोगों ने ठीक है कर दिया वैसा कुछ गड़बड़ तो कहाँ पे गड़बड़ हुआ। F1 इक्वल्स टू ई, अच्छा यहाँ पे जो हम लोगों ने पुट किया तो ए क्या होना चाहिए, t इक्वल्स टू 1, तो F1 ना दैट शुड बी ई, इट शुड बी ई ना। तो F1 ई इट मीन्स कि ये 1 ई हो जाएगा, ठीक है ना, ए ई होगा, ओके ओके ए ई हो जाएगा, ओके सर। हाँ कुछ तो गड़बड़ किया था, ठीक है चलो। तो ए ई हो गया एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 तो आई थिंक कि इट हैज़ बीन गिवन एज ट्वाइस एफ एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर दैट इज 2 and 2 ठीक है, कोई ऑप्शन मैच तो नहीं हो रहा। इफ आई पुट एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो देन दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ई, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा पहले यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है एक्स स्क्वायर इज 1 बाई ई, तो आई थिंक कि सम ऑप्शन शायद यहाँ पे 1 बाई रूट ई होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर एक्स स्क्वायर, बिकॉज इट कैंट बी नेगेटिव बिकॉज फंक्शन इज गिवन एज it is going to be r plus to r plus, okay try to evaluate this question ना, it is also one of the good questions। 1 मिनट और पानी पी लेते हैं। okay so let's see ना how to solve this problem। so I think कि ना ये देख के कुछ तो फील आ रहा है सर, क्या फील आ रहा है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ फील आ रही है। फील ए आ रहा है बेटा कि इफ़ आई ब्रिंग दिस एक्स इन द डिनोमिनेटर, इफ़ आई ब्रिंग दिस एक्स इन द डिनोमिनेटर विल गेट, देखना क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सो इन द न्यूमरेटर इट इज गोइंग टू बी ई रेज टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4, एवरीथिंग इज द स्क्वायर रूट डिवाइड बाय एक्स एंड माइनस 1 एंड अगेन इट इज डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 एंड माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, यस और नो, यस ओके लेट्स सी। तो इफ आई ऑब्जर्व ए और ए सेम है, दिस एंड दिस सेम, सो इफ दिस एंड दिस आर सेम, ठीक है, तो आई थिंक दिस माइनस 1 इज नॉट हियर ना, इट शुड बी हियर, तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। ओके लेट्स सी, सो इफ समहाउ वी फाइंड आउट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, तो वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस ना। तो इसकी सर लिमिटिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड इट इज गोइंग टू बी लिमिट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। तो मुझे दिख रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 0 इट इज गोइंग टू बी 0, numerator is 0 and denominator is also 0। if denominator is also 0 and numerator is also 0 it means कि we can use L'Hopital rule। तो L'Hopital rule में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, सर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, तो बेटा नीचे क्या हो गया 1 ना, इन द डिनोमिनेटर विल गेट 1, सो इफ आई डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विल गेट 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 ना plus x raised to 4 and again differentiation of the internal function, differentiation of 1 is going to be 0 and twice x plus x raised to 4x cube, yes or no। चलो तो अब फिर से सोचो ना, तो आई थिंक कि अब मुझे दिख रहा है इट इज़ नॉट इंडिटर्मिनेट फॉर्म इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0 बिकॉज न्यूमरेटर इज बीइंग 0 बट डिनोमिनेटर इज नॉट बीइंग 0, दैट इज 2, so it is means this value is going to be 0, so this limiting value is 0 no? So we also have studied कि standard limit if e raised to fx minus 1 divided by e raised to fx no? और limit fx tending to 0, तो बेटा ये standard limit है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, its value is 1, so I think कि answer is going to be equals to 1, answer is going to be equals to 1 ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी क्वेश्चन
इंटीग्रेशन का है तो ट्राई करने को तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कि विल एज्यूम टी स्क्वायर एज ना वाई एज्यूम कर लेना, तो ट्वाइस टी डी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर में आ जाएगा एक्स माइनस वन ना, ओके, तो देख लो। तो एट एक्स इक्वल्स टू वन आई थिंक इट इज टू 0/0 फॉर्म ना, इधर वी कैन डिफरेंशिएट डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, या फिर फर्स्ट वी कैन ट्राई टू इवेल्युएट दिस। So if I try to evaluate this 0 to x minus 1 whole square, and if I put t square equals to y, so 2t dt is going to be dy. So t dt, this portion is going to be dy. So 1 by 2 and cos y dy. तो integration of cos is going to be sin. cos का क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो इट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ वाई ना, और उसमें 1/2 कर लो, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू 0 to x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो आई थिंक कि लिमिटिंग वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो विल गेट 1/2 साइन ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो फिर से सेम है, तो सेम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है सर, ओके डन ना। एंड इफ आई पुट माइनस ना, तो यहाँ पे साइन 0 पुट करेंगे तो आई थिंक विल गेट 0 ना, विल गेट 0, तो इट डजेंट मैटर, तो दिस इज द आंसर। चलो अब ऐसे क्वेश्चन में फिर से मैंने बोला था इफ समथिंग लाइक दिस देन वी शुड पुट x इक्वल्स टू 1 + h, और यहाँ पे h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, h इज गोइंग टू बी टेंड फ्रॉम 0। सो इफ दिस हैपन देन आवर लिमिट इज गोइंग टू बी चेंज, x टेंडिंग टू h ना, तो वी हैव सॉल्व दिस न्यूमरेटर, सो दिस विल गिव अस 1/2 साइन अगेन ना 1 + h, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी h स्क्वायर ना, एक क्या हो जाएगा h स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय ना, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ये भी h हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी इनटू साइन h। तो बेटा इसके लिए क्या चाहिए, h स्क्वायर चाहिए, तो h स्क्वायर कैसे मिलेगा सर, यहाँ पे h स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई किया तो h से डिवाइड कर दो, तो a और a आई थिंक कि दे बोथ मेक अ स्टैंडर्ड लिमिट, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1/2, आंसर इज गोइंग टू बी 1/2। तो देख लो डज एग्जिस्ट तो कर रहा है एंड आंसर इज 1/2, सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन एक और किया था, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिखने पे फील हो रहा है इफ आई पुट x इक्वल्स टू इनफाइनाइट, सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था वी शुड टेक हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लो ना, तो हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लो, 0 × इनफाइनाइट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, और उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो 0/0 फॉर्म एंड विल यूज लॉपिटल रूल, और वन सिंपल थिंग यू शुड पुट x इक्वल्स टू 1/t, तो इफ x इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट इट मीन्स कि t इज टेंडिंग टू 0, नॉट 0 प्लस, क्योंकि इनफाइनाइट है ना बेटा, प्लस इनफाइनाइट, तो पॉजिटिव 1/∞ इज गोइंग टू बी अराउंड 0 प्लस, सो आई शुड कन्वर्ट इट, दिस इज गोइंग टू बी लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस ना, ऐसे थोड़ा इजी हो जाता है, तो इन द न्यूमरेटर इट इज गोइंग टू बी 1 - t एंड प्लस t स्क्वायर, और स्क्वायर रूट t स्क्वायर से बाहर गया तो एक तो t आ जाएगा माइनस, तो मैं कंबाइन कर देता हूँ -a और t इसको एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करते हैं, ठीक है, इट इज सेइंग कि इट इज इक्वल्स टू b, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ए b के इक्वल कब होगा, इट इज सेइंग कि ना दिस इज, सो आई नो कि इन द डिनोमिनेटर वी हैव 0, तो इसका मतलब इफ लिमिटिंग वैल्यू इज एग्जिस्टिंग इट मीन्स कि न्यूमरेटर नीड टू बी 0, न्यूमरेटर 0 होगा तभी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सर, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, अदरवाइज वी कैन डिटरमाइन द लिमिट, बट इन द आंसर इट हैज बीन गिवन, सो इट मीन्स कि जो भी होगा t इक्वल्स टू 0 ना, ये 0 होना चाहिए, तो 0 कर देते हैं, तो इट इज गोइंग टू 1 - 0 -a और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, a की वैल्यू क्या गई 1, वैल्यू ऑफ a बिकम्स 1, सो इफ वैल्यू ऑफ a बिकम्स 1 तो आई थिंक कि अब तो बहुत ही ईजी दिख रहा है, लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस एंड दिस इज गोइंग टू बी √1 - t प्लस t स्क्वायर -1
डिवाइडेड बाय टी। तो डिफरेंशिएट करके आई थिंक विल फाइंड आउट ना, विल फाइंड आउट। सो इफ डिफरेंशिएशन इज इनटू 1/2 रूट ओवर 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इनटू -1 प्लस 2t और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन 1। सो इफ आई पुट t इक्वल्स टू 0 इट इज गोइंग टू -1 इन द न्यूमरेटर and in the denominator we'll get 2. So this is giving us -1/2. It means कि value of b is -1/2. value of b is -1/2. तो ordered pair a comma b means a is 1 and b is -1/2. so 1 comma -1/2 तो ऑप्शन नंबर 4। तो ये 5 पता नहीं कहाँ से हो गया, तो इसको करेक्ट कर लो। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। अच्छा, दिस इज आल्सो ना इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, हम लोग बाद में करेंगे इसको, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 20। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक यू कैन डू इट ना। तो ऊपर इसमें देखो सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं। कैसे सर? बिकॉज वी नो कि x इज अप्रोचिंग 1/√2। इफ x इज अप्रोचिंग 1/√2 तो हम सबको पता है एवरीथिंग इज गोइंग टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक काम कर लो, कॉस इनवर्स x को tan के टर्म में कन्वर्ट कर लो एंड सिमिलरली इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड आई थिंक कि फिर तो सिंपल आ जाएगा, विल डिफरेंशिएट एंड विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ट्राई करो, हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे सर ना इसको कैसे करें ना, इसको करना आई थिंक कि बहुत ही सिंपल है। कैसे कर सकते हैं सर? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ना। तो इफ इट इज एक्सटेंडिंग टू 1 वी हैव हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म, बिकॉज डिग्री ऑफ x इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग अप टू n। तो ये -n है, तो अगर -n है तो क्या मैं इसको -1 n टाइम्स राइट डाउन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, यू कैन राइट इट डाउन। सो इट मीन्स इफ आई कैन राइट डाउन, तो हम लोग कैसे ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं क्या? सो पहले x -1 एक किसको दे दिया, प्लस x² -1 यस और नो, प्लस x³ -1 प्लस एंड सो ऑन x⁻n -1 yes or no? yes sir, and everything is divided by x -1। तो बस ज़रा सा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके बताते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है? बहुत ही सिंपल है। तो ऑब्जर्वेशन जस्ट थिंक अबाउट इट कि इफ़ x -1 डिवाइड बाय x -1 विल गेट 1 ना। इस पर एग्री करते हो यानी ना। और x² -1 डिवाइड बाय x -1 इज गोइंग टू बी x -1 इंटू x + 1 डिवाइड बाय x -1 विल कैंसिल, सो विल गेट x + 1 या फिर 1 + x। और ऐसे x³ में करोगे तो विल गेट 1 + x + x²। तो आई थिंक कि वी आर गेटिंग सम पैटर्न ना अप टू n टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स वी हैव? n टर्म्स ना। अब तो देख लो यार, बहुत ही सिंपल पैटर्न बन गया और ए इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी हट गया। तो विल जस्ट पुट x = 1। सो इफ आई पुट x = 1 इट इज 1 + 2 + 3 एंड डॉट 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 प्लस n no. So its sum is given 120 and we feel like it is the sum of first n natural numbers. So I will just use formula n + 1 divide by 2, that is 820. So it means कि n into n + 1 is going to be वो ना, मैं इसको ऐसा लिख दूंगा 82 मीन्स 41 इंटू 20 और ये 2 हो गया 40। तो अब मुझे दिख रहा है सिंपल n की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 ना। इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्वाड्रेटिक और समथिंग लाइक दिस यू शुड ना, स्पेशली इन केस ऑफ जहाँ पे परमुटेशन PNC वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, जहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। तो ट्राई किया करो, जो रिजल्ट आ रहे हैं अगर 2 के प्रोडक्ट में है तो वी शुड ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स एंड बाय कंपेयरिंग विल गेट आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। तो यार देखो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे एक बार लग रहा है कि मुझे ए करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? यहाँ पर तो सिंपल है 1 - cos² ना x, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। तो इफ़ आई टेक -cos x² by 4, सो आई थिंक यू विल गेट यहाँ पे 1 - cos x² by 2 ना, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेम। तो ओवरऑल व्हाट आई कैन डू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 and 1 by x⁸ and we can factorize this 1 - cos x² डिवाइड बाई 2 और दूसरा फैक्टराइजेशन किया तो 1 - cos x² डिवाइड बाई 4। ओके सर ना। अब फिर से यार स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ना। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बना सर? 1 - cos x और नीचे उसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर क्या होगा ना, तो इसका स्क्वायर हम लोग राइट डाउन करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स रेज टू 4 और नीचे क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय 4। तो अगर इससे ओ किया तो इसका मतलब फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, 4 बाय एक्स रेज टू 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई किया तो इससे डिवाइड करोगे। हाँ सर, ओके। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे भी फिर वही करेंगे ना, इसके स्क्वायर से, तो एक्स रेज टू 4 और इसका स्क्वायर 16 और इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 अपॉन एक्स रेज टू 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो एक क्या दे देगा, दिस विल गिव अस, दिस कंप्लीट विल गिव अस 1/2 एंड दिस कंप्लीट अगेन विल गिव अस 1/2। तो देखो, और एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 8 एवरीथिंग विल कैंसिल, सो बेसिकली विल गेट 1/2 इंटू 1/2 इन द न्यूमरेटर ना, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा 4 इंटू 16। तो मुझे लग रहा है यार सब डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा, 1/2 2 ज़ा 4 इंटू 4 इंटू 16, तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 इंटू 16 इज गोइंग टू बी 256, 1/256 एंड 256 इज गोइंग टू बी 2 रेज टू -8। तो यहाँ से आई थिंक कि k इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 8 ना, बाय कंपैरिजन वैल्यू ऑफ k इज गोइंग टू बी 8। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और फिर से आई थिंक कि ये इजी क्वेश्चन है ना, x इक्वल्स टू 0 पे बन रहा है ना, 0/0 फॉर्म। ओके सर, तो अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो यार इसको देख के मुझे लग रहा है इसको कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए सर, x से डिवाइड कर दे तो ना, पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सो इफ़ आई डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, ax माइनस a रेज टू 4x माइनस 1 ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 4x ना, एज और सोना सेम होना। ओके, इफ़ आई डिवाइडेड सो आई शुड आल्सो मल्टीप्लाई इट ना, डिवाइडेड बाय ax एंड अगेन वी नीड डिवाइडेड बाय 4x एंड इफ आई डिवाइड आई शुड मल्टीप्लाई 4x। ओके, तो आई थिंक कि दिस विल गिव अस 1, तो एक x को लेके ना इसको डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे a क्या आ गया यार, अच्छा सो अब यहाँ से फील हो रहा है कि a माइनस दिस ना, और डिनोमिनेटर में तो मुझे दिख रहा है कि 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इफ़ इट नीड टू एग्जिस्ट सो दिस वैल्यू शुड इक्वल्स टू 0, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या होगा सर, a माइनस इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 इज 0 होना चाहिए। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, दैट इज़ 1 ना, a की वैल्यू क्या आ गई 1। सो इफ़ a बिकम्स 1 ना, तो फिर तो सर बहुत ही सिंपल चीज़ें हो रही हैं ना, a इक्वल्स टू 1 तो इसकी वैल्यू 1, ये सब हट गया, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, 0/0। तो ट्राई कर लेना, उससे b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ सर मतलब थोड़ा वो हो रहा है, तो सीधा डिफरेंशिएट कर दो यार, बाय यूजिंग लॉपिटल रूल ना, सीधा डिफरेंशिएट कर दोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इट लिमिट आई थिंक देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b। तो अगेन सेम प्रोसेस, एट x इक्वल्स टू 1 विल ट्राई टू फाइंड आउट, तो एट x इक्वल्स टू 2 माइनस 7 एंड प्लस बट न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी 0 ना, तो और इट इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो डिनोमिनेटर को भी 0 होना पड़ेगा। तो इफ डिनोमिनेटर नीड टू बी 0 सो इट मीन्स कि इट शुड बी 2 माइनस 7 प्लस a प्लस b इज गोइंग टू बी 0। तो आई थिंक कि a प्लस b इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5 ना, फर्स्ट इक्वेशन विल गेट दिस, एंड सेकेंड इफ दिस बिकम्स इक्वल्स टू 5 एंड दिस बिकम इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इसको एवेल्युएट करने के लिए यू शुड डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके यार ना b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, इक्वल्स टू -2 विल गेट अनदर इक्वेशन, एंड देन बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, एंड फाइनली विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a माइनस b। Denote the greatest integer less than integral value of alpha for with the left hand limit of the function is equals to, left hand limit means कि at x equals to 0, so limit x tending to 0 माइनस ना, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है पहले से, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। तो 0 माइनस इट इज़ गोइंग टू बी ना लेस देन नेगेटिव, सो 1 माइनस समथिंग एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, आई थिंक कि a तो 0 हो गया बेटा, ठीक है, प्लस। अब इसके बारे में सोच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वेरी लेस नंबर, तो आई थिंक इट इज़ -1 एंड -1 प्लस
वेरी नियर टू ज़ीरो, जीरो, तो आई थिंक इट इज़ इनटू अल्फा रेज टू -2, और फिर से a -1 और -1 -2 डिवाइडेड बाय 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो इट इज सेइंग कि इट्स वैल्यू इज ना अल्फा -4/3, तो देख लो ना। तो आई थिंक कि वी नीड टू सॉल्व, ट्राई करो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड विल सॉल्व एंड देन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो आई थिंक कि ईजी। तो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ना, एंड रेस्ट इज जस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आ ही जाता है, ठीक है। बस मेथड सही यूज़ किया करो, ठीक है। स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिसेंटली ईयर्स अभी JEE मेंस का जो पैटर्न है वो जो टफनेस था उन्होंने बहुत डिक्रीज़ कर दिया ना कोविड के बाद से। दे आर आस्किंग क्वेश्चन डायरेक्टली, आई मीन डायरेक्टली मीन्स कि सिंपल। पहले क्या होता था कि यू गेट मल्टीपल ऑप्शंस और उसमें चूज़ करना पड़ता था ना कि सबको चेक करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है ना, ऐसे ऑप्शन देते थे, कंफ्यूजिंग ऑप्शन डालते थे। अभी थोड़ा सिंपल ऑप्शन देने लगे, ठीक है, और क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे ना। अब अगले वीडियो में अगले किसी चैप्टर के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।